موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس نے اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ خط کے آخر میں تحریر تھا، سیدہ بین کی ایک گمنام لڑکی۔ ابو نواس نے کھولتی ہوئی آواز میں کہا، یقیناً وہ ہماری بہن اریتا کا خط ہوگا۔ تاتاریوں نے اگر ہماری مسلم بستیوں کو تباہ ویران کیا ہے تو خدا کی قسم ہم تلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ امیر نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے ابو نواس اور حوازن سے کہا، تم دونوں کولان اور ہموارہ کو لے کر قلعے میں چلے جاؤ اور مسکن کی حفاظت کرو۔ میں لشکر کے پیچھے جاتا ہوں، مجھے امید ہے میں انہیں تلم پہنچنے سے قبل جا لوں گا۔ حوازن نے پرزور احتجاج کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے آقا؟ ابو نواس اور حوازن آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر حوازن نے رباح سے مخاطب ہو کر کہا، رباح تم بگھی کو قلعے میں لے جاؤ، یہ ابو نواس اور میری بیویاں ہیں، انہیں اسی عمارت میں ٹھہراؤ جس میں ہم تینوں رہتے ہیں اور ہم لشکر کے پیچھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو موڑتے ہوئے امیر سے کہا، چلیے سیدی۔ ابو نواس بھی اپنے گھوڑے کو موڑ چکا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ تینوں تبریز کی طرف جانے والی شاہراہ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے دھول اڑاتے ہوئے شمال مشرق کی رخ پر اڑے جا رہے تھے۔ ایک بستی کے قریب جبکہ امیر، ابو نواس اور حوازن دریائے فرات کا پل پار کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ان سے آگے صرف ایک فرلانگ کے فاصلے پر ان کا لشکر جا رہا تھا۔ جب وہ لشکر سے نزدیک ہوئے تو پچھلے سپاہیوں نے ان تینوں کو دیکھ لیا۔ پھر لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان کی آمد کی خبر ہو گئی اور لشکر رک گیا۔ وہ تینوں جب لشکر میں داخل ہوئے تو چاروں طرف سے تکبیر کی فلک شگاف صدائیں بلند ہونے لگی۔ وہ تکبیروں کے جواب میں ہاتھ لہراتے ہوئے لشکر کے آگے آگے شیبان، حشام اور جابر نے ان سے مصافحہ کیا۔ لشکر نے دوبارہ کوچ کیا، اس حالت میں کہ آگے امیر تھا، اس کے پیچھے ابو نواس اور حوازن، اور ان دونوں کے پیچھے حشام، جابر اور شیبان تھے۔ لشکر اب امیر کی سرکردگی میں پہلے کی نسبت زیادہ تیز رفتاری سے حرکت میں آیا۔ تیز ہوا میں عربوں کی لہراتی عبائیں، ترکوں کے چمکتے خرد اور جفاکش بربریوں کے غسیل آبنوسی چہرے ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئے تھے، ایک ایسا تباہی کی آگ کا طوفان جو اپنے راستے میں کانٹوں کے انبار جلا کر راکھ کر دے، شدت کا ایک ایسا طوفان جس کا کوئی راستہ نہ روک سکے۔ تلم پہنچتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تاتاری باہر نکل کر حملہ آور ہونے کے بجائے قلعے بند ہو گئے۔ امیر کے حکم پر لشکر حرکت میں آیا اور کودالوں کی مدد سے قلعے کے گرد دمدمے بنانے شروع کر دیے۔ قلعے کے برجوں سے تیروں کی تیز بوچھار ماری گئی، مگر موت کے مسافر ڈھالوں کی اوٹ میں دمدمے بناتے رہے۔ اچانک اس وقت جب کہ مسلمان دمدمے بنانے میں بری طرح مصروف تھے، قلعے کا دروازہ کھلا اور 3000 تاتاری سوار اپنے گھوڑوں کو مارتے پیٹتے اور تیزی سے دوڑاتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ ابھی وہ دور ہی تھے کہ ان مسلمان جاسوس کے اشاروں پر جو دشمن پر کڑی نگاہ رکھنے پر مامور تھے، جنگ کے نعرے بج اٹھے۔ مسلمانوں نے دمدمے بنانے بند کر دیے اور فوراً گھوڑوں پر سوار ہو کر ہتھیاروں سے لیس ہو گئے۔ چاروں طرف سے عرب، ترک اور بربری سمٹ کر حملہ آور ہوئے۔ گھمسان کا ایک معرکہ ہوا۔ تاتاری اپنے ساتھیوں کو تیزی سے قتل ہوتے دیکھ کر پسپا ہوئے اور قلعے کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور مارتے پیٹتے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرنے لگے۔ تاتاری بدحواسی کے عالم میں اندھا دھن گھوڑے دوڑاتے قلعے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ شام تک دمدمے بنا کر مکمل کر دیے گئے اور سپاہی ان کی آڑ میں تیروں کے ڈھیر اپنے پاس جمع کر کے بیٹھ گئے۔ قلعے کے شمال کی طرف فوج کی کمان حشام کو سونپی گئی، جنوب کی طرف جابر اور مغرب کی طرف ایک ترک جرنیل تھا۔ امیر، ابو نواس اور حوازن مشرق کی سمت تھے جہاں قلعے کا صدر دروازہ تھا، جہاں سے نکل کر تاتاری حملہ آور ہوئے تھے۔ امیر نے ایک بار اپنے گھوڑے پر قلعے کا چکر لگایا۔ حالات کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد وہ حشام کے پاس آ کر رکا اور اسے
उस जासूस को बुलाने के लिए कहा जिसने मुस्लिम बस्तियों की तबाही की खबर दी थी। हश्शाम ने एक सिपाही को भेजा और थोड़ी देर बाद वो उस जासूस को ले आया। अमीर के पास आकर उस जासूस ने बड़े अदब से अमीर को सलाम किया और मुअद्दबाना खड़ा हो गया। अमीर ने अपने घोड़े से उतरते हुए पूछा, मेरे नाम तुम्हें ख़त किस लड़की ने दिया था? मुझे उसने अपना नाम नहीं बताया। मेरे आका, वो सैदाबीन की कोई गुमनाम लड़की है। तुम्हें वो कहाँ मिली थी? सैदाबीन की कुछ लड़कियाँ, चंद मुअम्मर मर्द और औरतें बच गए हैं। बस्ती के 4 घरों के अंदर तहखाने थे और वह लोग उन तहखानों में अभी तक महफूज हैं। जब तबाहशुदा सैदाबीन का जायज़ा ले रहा था तो वो लड़की तहखाने से निकलकर मुझे मिली थी। क्या तुम वो तहखाना जानते हो जहाँ से वो लड़की निकली थी? मैं जानता हूँ मेरे आका, आओ मेरे साथ। हश्शाम, तुम मशरिक़ की तरफ सदर दरवाज़े पर जाकर फ़ौज का नज़्म ज़ब्त संभाल लो। मैं थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। अबू नवास और हवाज़न भी मेरे साथ जा रहे हैं। यहाँ शुमाल की तरफ अपनी जगह किसी और को मुकर्रर कर दो। तारीकी में अपने घोड़े दौड़ाते हुए अमीर, अबू नवास और हवाज़न उस जासूस के साथ सैदाबीन आए। वह जासूस अमीर को किसी तहखाने का पता बताने ही लगा था कि अमीर की नज़र सितारों की मलजगी रोशनी में एक बूढ़े शख्स पे पड़ी जो मलबे के अंदर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। अमीर जब उसके नज़दीक हुआ तो उसने देखा वो बूढ़ा अहमद था, वही अहमद जिसका घर अरीता के घर के सामने था और जिसने अमीर और उसके साथियों से लड़ने वाले तातारियों की लाशें ठिकाने लगाई थी। अमीर ने उसे पुकारा, चाचा अहमद, आप क्या तलाश कर रहे हैं? और खुशी दुख के मिले जुले जज्बात में कहा, तुम आ गए बेटे। अरीता ने तुम्हें मदद के लिए पुकारा था। वो दिन रात तुम्हारा इंतज़ार करती रही है और पूरी रात तुम्हारे आने की दुआएं मांगा करती है। शायद कुदरत उसकी दुआएं कबूल कर चुकी है, पर तुम सिर्फ अपने इन 3 साथियों के साथ आए हो। नहीं चाचा, मैं अपने लश्कर के साथ आया हूँ। हमने तलम का मुहासरा कर लिया है। तातारी एक बार खुले मैदान में हमसे मुकाबला करके पसपा हो चुके हैं। अब मैं उन पर बाकायदा हमला शुरू करने वाला हूँ। अहमद एक तरफ लपका, ठहरो, मैं अरीता को तुम्हारी आमद की इत्तला करता हूँ, वह बेहद खुश होगी। अहमद रुक गया और दुख से बोला, पर तुम्हें एक खबर सुनकर दुख भी होगा। वो क्या? अरीता की माँ को तातारियों ने कत्ल कर दिया है और वो जफाकश लड़की इस दुनिया में अब अकेली रह गई है। अमीर का सर गम से झुक गया। अहमद फिर आगे बढ़ा। मलबे में से गुजरता हुआ वो एक जगह रुका, नीचे झुककर एक पत्थर उठाया। वहाँ तहखाने को जाने वाला रास्ता नमूदार हुआ था। अहमद सुराख के अंदर मुंह ले जाते हुए ज़ोर से, अरीता बेटी, सबको साथ लेकर बाहर आ जाओ। अमीर अपने लश्कर के साथ पहुंच चुका है और तलम का मुहासरा कर लिया गया है। अहमद पीछे हटा और दोबारा अमीर के करीब आकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद अरीता तहखाने से निकली और उसके पीछे पीछे बेशुमार औरतें तहखाने से निकल पड़ी। उनमें जवान कम, अधेड़ उम्र ज़्यादा थी। सितारों की मलजगी रोशनी में अमीर ने अरीता की तरफ देखा। उसके लिबास में सादगी के बावजूद परकारी और नफासत थी। उसके चेहरे पर माजी की ईज़ाओं, कुल्फ़तों के धुंधलके के पेश मंज़र में अब खुशी के आंसू, नग़मों और कहक़हों का सैलाब। उस तारों भरी रात में जबकि आसमान से शबनम बड़ी तेज़ी से गिर रही थी, अरीता अमीर के सामने खड़ी बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर वो कुछ न कह पाई। उसकी ज़बान जैसे बांध दी गई हो। अमीर जो उसके लिए रोशनी का मीनारा था, वही अमीर जिसे उसने हमेशा अपने दिल के आसमां के सितारों में देखा था, जो शाहराए हयात के चौराहे पर खड़ा उसे हमेशा पुकारता था, जिसके इंतज़ार में उसने पहरों झिलमिलाते और डूबते सितारों से बातें की थी। वो उस आमिर को कुछ न कह पाई जिसके वजूद से उसके दिल की कंदीलें रोशन थी। वह कुछ कहना चाहती थी, वो उसका इस्तक़बाल करना चाहती थी, लेकिन वो तो परकटे पंछी की तरह फड़फड़ा कर रह गई थी। अमीर उसे देखते जा रहा था, अमीर उसे देखे जा रहा था, पर वो तो उस आए हुए हरम की तरह खामोश और साकिन खड़ी थी जिसे कोई ख़तरा न हो। फिर अमीर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया, अरीता,
मुझे तुम्हारे माँ के मरने का दुख है। अरीता रो पड़ी। उसके आंसुओं में शिकवों की एक दुनिया आबाद थी और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क कर अमीर से कह रहा था, तुम मेरे हो, जब तुम मेरे साथ हो मुझे कोई गम नहीं और दुख नहीं। आंसू पोंछकर अरीता जवाब में कुछ कहना चाहती थी। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और गर्दन के करीब से अमीर की एबा पकड़कर जोर से खींचती हुई और बुढ़िया गुस्से में आग और गंधक के धमाके की तरह फट पड़ी। तुम कैसे भाई हो जो तातारियों के हाथों अपनी मुस्लिम बहनों की असमतें नहीं बचा सकते? तुम कैसे मुसलमान और मौत के मुसाफिर हो जो अपनी माओं और बहनों की पुकार पर बरवक्त लब्बैक नहीं कह सकते? बुढ़िया ने ज़ोर से अमीर की एबा पकड़ कर फाड़ दी। फिर उसकी ज़र्रा पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारते हुए वो बेचारी रोती हुई हिचकियों में कहने लगी, तुम क्यों उस वक्त यहाँ न थे? तुम क्यों देर से आए हो? काश तुम उस वक्त यहाँ होते, तुम देर से जागे हो। आह! बुढ़िया फूट फूट कर रो दी। अमीर ने भीगी पलकों के साथ गर्दन झुका रखी थी। अरीता आगे बढ़ी। बुढ़िया के हाथ से अमीर की एबा छोड़ाकर उसने बुढ़िया को इलादा करते हुए अपने बहते आंसुओं में अमीर से कहा, तुम क्यों उस वक्त यहाँ न थे? तुम क्यों देर से आए हो? काश तुम उस वक्त यहाँ होते, तुम देर से जागे हो। बुढ़िया फूट फूट कर रो दी। अमीर ने भीगी पलकों के साथ गर्दन झुका रखी थी। अरीता आगे बढ़ी। बुढ़िया के हाथ से अमीर की एबा छोड़ाकर उसने बुढ़िया को इलादा करते हुए अपने बहते आंसुओं में अमीर से कहा, ये अहमद चाचा की बहन है। तातारियों ने इनके दोनों बेटों को उसके सामने कत्ल किया और उनका खून एक गिलास में भरकर उसे पीने को कहा। जब उसने पीने से इनकार किया तो उसका मुंह खोलकर उसके बेटों का खून ज़बरदस्ती उसके मुंह में अंडेला गया। अपने बेटों की वहशियाना मौत पर यह अपने हवास खो चुकी है। क्या मैं उम्मीद रखूं आप उसके सुलूक पर अपना दिल मैला नहीं करेंगे? अमीर ने कोई जवाब न दिया। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। बुढ़िया अभी तक हिचकियाँ लेकर रो रही थी। अरीता अपने आंसू पोंछने लगी थी। अमीर के पहलू में खड़े अबू नवास और हवाजन अपनी भीगी पलकों के साथ उस बुढ़िया की तरफ देख रहे थे। सामने खड़ी सारी औरतें और बूढ़ा अहमद सब रो रहे थे। अचानक अमीर ने अपना सर एक झटके से ऊपर उठाया और दहाड़ती हुई आवाज़ में अरीता से पूछा, अरीता, किसने उसके बेटों का खून उसके मुंह में अंडेला? अरीता ने उस बुढ़िया को अपने साथ लिपटाते हुए कहा, किला तलम के तातारी सिपह सालार और उसके छोटे भाई ने। अमीर की हालत उस वक्त उन आंधियों जैसी थी जो रेत के तूदे उठाकर ले जाती हैं और आबादियों को दफन करके रख देती है। उसने सर घुमाया और पहली जैसी भयानक आवाज़ में कहा, अबू नवास और हवाजन, यह हुक्म हर सिपाही के कानों कान पहुंचा दो कि तलम के तातारी सालार और उसके भाई को हर सूरत में ज़िंदा गिरफ्तार किया जाए। जवाब में उन दोनों के सर झुक गए थे। अमीर रुका, फिर अहमद से कहा, अहमद चाचा, क्या यहाँ ऐसा कोई और तहखाना भी है? अहमद अपनी आंखें पोंछता हुआ अमीर से करीब हुआ। यहाँ ऐसे 3 और तहखाने भी हैं जिनमें बस्तियों के कुछ मर्द छुपे हुए हैं। तो फिर जाकर उन्हें भी ये खुशखबरी सुना दो कि तलम का मुहासरा हो चुका है, वो अब आज़ादी से बाहर निकलकर घूम फिर सकते हैं। अमीर जब अपने घोड़े पर सवार होने के लिए मुड़ा तो अरीता तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और धड़कते हुए दिल से कहा, ठहरिए। अमीर मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। अरीता ने अपनी तेज़ धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, अब कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस जाकर जंग की बाकायदा इब्तिदा करूँगा। क्या मैं जंग में शरीक न हो सकूँगी? मैं अगर लड़ नहीं सकती तो अपने भाइयों की मरहम पट्टी तो कर सकती हूँ। मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें ये काम कार खैर अंजाम दे सकती हैं। अमीर ने उसकी बात काटते हुए कहा, आज की रात मैं सिर्फ उन्हें बुरी तरह जंग में मसरूफ़ रखूँगा। किले में दाखिल होने की कोशिश मैं कल करूँगा। आज की रात मैं किसी को वहाँ आने की इजाज़त न दूँगा। कल सुबह से जो भी लश्कर की खिदमत के लिए आएगा मैं उसे मना नहीं करूँगा। अमीर अपने घोड़े पर सवार हुआ और तलम की तरफ रवाना हो गया। अबू नवास और हवाजन उसके पीछे पीछे थे। किले के सदर दरवाजे के पास आकर अमीर घोड़े से उतरा। 3 सिपाही भागते हुए आगे बढ़े और उनके घोड़े पकड़कर पीछे ले गए। सिपाही खामोशी से दमदमों की आड़ में बैठे हुए थे। उनके पीछे मोटी लकड़ी की पहियों वाली गाड़ियां खड़ी थीं जो चारों तरफ से बंद थी और उनके अंदर अनगिनत सुराख थे।
जिनमें से सिपाही अंदर बंद होकर दुश्मन पर तीर अंदाजी कर सकते थे, उन लकड़ी के छकड़ों के पीछे ज़रा दूर जहां किले से बरसाए जाने वाले तीर न पहुंच सके, वहां लश्कर के घोड़े खड़े थे और वहीं कुछ सिपाही सामान्य रसद के लिए ख़ीमे नस्ब कर रहे थे। अमीर एक दमदमे के पीछे आकर बैठ गया और हश्शाम से कहा, हश्शाम, तुम अपने महाज पर चले जाओ। अबू नवास और हवाज़न, तुम दोनों एक बार किले के गिर्द चक्कर लगाओ और अपने सिपाहियों से कहो, जब मैं फ़िज़ा में जलते हुए परों का तीर छोड़ूंगा, किले में आतिशी तीरों की बौछार शुरू कर दें। हत्तलवसी, कोशिश करें कि तीर किसी सिपाही को हदफ बनाकर चलाया जाए। फजर की नमाज के बाद जब मेरी तरफ से तकबीर बुलंद हो और नक्कारे बजे तो बंद छकड़ों में पूरी क़ुव्वत से किले पर हमला कर दिया जाए। मैं चाहता हूँ कल सुबह का सूरज हमें तलम के अंदर लड़ता हुआ देखे। हश्शाम अपने महाज पर चला गया। अबू नवास और हवाज़न भी वहाँ से उठे और सिपाहियों को अमीर के अहकाम पर रवाना कर दिए। पूरी रात दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीरों की बारिश होती रही। इस्लामी सिपाह ने बारी बारी फजर की नमाज अदा की और अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर फ़तह और नुसरत की दुआएं मांगी। जब सारा लश्कर नमाज से फारिग हो चुका तो अमीर के मुहाफिज दस्ते के तौर पर लड़ने वाले सिपाहियों ने अमीर के इशारे पर बैक आवाज़ होकर कई बार तकबीर बुलंद की, जिसके जवाब में तलम के चारों तरफ अल्लाहु अकबर की रूह फरसा आवाज़ें गूंजने लगी। फिर सदर दरवाजे के सामने जहां अमीर, अबू नवास और हवाज़न थे, एक साथ कई नकारे बज उठे और जलते परों का एक तीर फ़ज़ा में छोड़ा गया। सिपाहियों की आधी तादाद उठकर लकड़ी के छकड़ों को किले की तरफ खींचने लगे और आधे सिपाही दमदमों की ओट में बैठे किले पर तीरों की बारिश करते रहे। छकड़ों को धकेलने वाले सिपाही छकड़ों की ओट में थे, लिहाजा वह तातारी तीरों से महफूज थे। छकड़ों को किले से बाहर निकलकर करीब ले जाने के बाद सिपाही तीरों से भरे हुए उन छकड़ों में महफूज होकर बैठ गए और जो तातारी सिपाही किले के बुर्जों से निकलकर बाहर तीर बरसाने की कोशिश करता, छकड़ों में बैठे सिपाहियों के तीर उनका जिगर चीर देते और वह किले के फसील से बाहर आ गिरते। सिपाहियों से भरे हुए 10 छकड़े किले के सदर दरवाजे के सामने रुक गए। उनकी कमान अबू नवास कर रहा था। अमीर और हवाज़न एक ही छकड़े में बैठे थे। उनके साथ 15 सिपाही थे और ये छकड़ा सदर दरवाजे के दाएं तरफ आकर रुक गया था। अमीर और हवाज़न छकड़े से निकलकर ढालों की ओट में फसील के करीब आए और अपनी कमंदें किले के बुर्ज पर फेंकी। उनके पीछे पीछे अनगिनत सिपाही किले पर अपनी कमंदें फेंक चुके थे। अमीर और हवाज़न अब बड़ी तेज़ी से अपनी कमंद के ज़रिए फसील के ऊपर चढ़ रहे थे। बुर्ज के ऊपर से जो भी बाहर निकलकर उन पर तीर बरसाना चाहता, छकड़ों के अंदर से और दमदमों के पीछे से उन पर तीरों की बाढ़ आती। वह या तो तीरों से घायल होकर नीचे गिर जाते या बुर्ज की ओट में हो जाते। अमीर और हवाज़न की तरफ देखते हुए बहुत से सिपाही कमंदों के ज़रिए किले के फसील पर चढ़ने लगे थे। फसील पर चढ़ते ही अमीर और हवाज़न को वहाँ 10 तातारी सिपाहियों का सामना करना पड़ा। उन दोनों ने अपनी पीठें मिलाई थी और बड़ी बेजिगरी से मुकाबला करते हुए अपने लिए खड़ा होने की थोड़ी सी जगह बना ली थी। इतनी देर तक उनके सिपाही भी फसील पर चढ़ आए। लम्हा बलम्हा उस बुर्ज पर तातारियों की तादाद बढ़ रही थी, लेकिन जब अमीर और हवाज़न अपने साथियों के साथ टूटकर हमला किया तो वो तातारियों को पीछे धकेलकर उस बुर्ज पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए थे और अब वो कमंदों के ज़रिए अपने नए आने वाले सिपाहियों के लिए जगह पैदा करने की खातिर आगे बढ़कर तातारियों पर हमलावर हुए। किले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि सदर दरवाजे के एक बुर्ज पर मुसलमान कब्ज़ा कर चुके हैं। लिहाजा तातारी फ़ौजों का सैलाब उस बुर्ज की तरफ उमड़ पड़ा। किले का तातारी सालार चीख चीख कर उस बुर्ज को मुसलमानों से छीन लेने के अहकाम जारी कर रहा था। अमीर और हवाज़न जो अपने साथियों के साथ अब काफ़ी आगे बढ़ गए थे, रुकने पर मजबूर हो गए। एक एक मुसलमान सिपाही से लड़ने के लिए 20-20 तातारी उमड़े चले आ रहे थे। एक मौका पर जब उन पर तातारियों का ज़्यादा दबाव पड़ा तो वो पसपा होना शुरू हो गए, हत्ता कि तातारी उन्हें धकेलते हुए उसी बुर्ज के पास ले आए जहां उन्होंने पेशकदमी शुरू की थी। अचानक फसील पर चढ़ने वाले मुसलमानों ने अंधाधुंध तातारियों की बढ़ती हुई एलगार पर तीर बरसाए और इस तरह एक बार फिर तातारियों के कदम रुक गए।
اس موقع پر عامر کی بلند اور گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا تھا